Ladies and gentlemen, good day and welcome to the 4Q FY22 results conference call of Xylem Industries, hosted by Systematix Institutional Equities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ashish Poddar from Systematix Institutional Equities. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Rutuja. Good afternoon, everyone. I'm Ashish Poddar from Systematix Group. I welcome you all for joining today. It is our pleasure to host the senior management of Xylem Industries. From the management side, we have Shri Jagdish Gupta, the Chairman and Managing Director, and Shri Kishan Nagpal, the Chief Financial Officer. I request Jagdish ji to give an opening remark on the quarter and full year performance, post which we shall open the floor for question and answer session. Over to you, sir. Okay. Ashish ji, I could not understand what you mean. What should I start? Sir, you can start with a brief remark on your quarter and full year performance. A few lines on that, and then we can start the Q&A, question and answer. Yeah. On this fourth quarter, we already achieved a turnover of 180 crores, and total turnover for the year is 659 crore, as compared to 479 financial year 2021. We have achieved a top line growth of 37%, which is very challenging in this bad environment of pandemic. We have achieved a EBITDA of 20 crore in fourth quarter, with a total EBITDA of 104 crore in the financial year 2021, against a EBITDA of 99 crore in financial year 2021. There has been drastic increase in raw material prices and ocean freight in financial 2021-22, which could not fully pass to the customer and which has put the pressure on the margin of the company. Although we have able to achieve EBITDA of 104 crore in current financial year against EBITDA of 99 last year. During the third quarter, prices of raw material was on peak, and material purchased in third quarter was consumed in fourth quarter, which has dropped the margin of EBITDA in fourth quarter. The prices of raw material start going soft now in fourth quarter, and material purchased in fourth quarter will definitely contribute to the better margin in forthcoming quarters 2022-23. Rutuja, you can start the session, Q&A session. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Yogan Jeswani from Mittal Analytics. Please go ahead. Hi, sir. Thanks for the opportunity. So, one question on the demand side with now prices rising across everything. Do you expect any slowdown in terms of your orders in the export market, or are we still seeing good demand traction? No. Now export market is growing. If we go for our even last month, export market is growing. There is no slowdown anywhere in export market. And in domestic, sir? Domestic also we are growing. Our sales is increasing in domestic also. Okay. And sir, in terms of realization, I think year on year between quarter 4 this year and quarter 4 last year, the volume growth is 15%, right? Right. And realizations, in terms of sales, we are up 5%. So
is this drop because of the product mix change or is there something else to it? Sorry, again? I think the volume growth year-on-year between Q4 last year and Q4 this year is 15%, while our top line has grown in value terms by 5 odd %. So is this drop because of any change in product mix or is there something else to it? Hello, Krishnan Rajpal this side. Ji. Actually, there is a decline in margin because of increasing the price of raw material cost. नहीं सर, I'm not talking about margins. I'm saying जैसे जो अपना अगर वॉल्यूम ग्रोथ 15% था, while अपना वैल्यू लेवल में 5% ही दिखता है Q4 में, तो क्या कोई प्रोडक्ट मिक्स का चेंज है ये? नहीं, there is no problem. We are Q4 में our sale is increased rather, but I think there is some misunderstanding. If we go for Q4. No worries, sir. I'll take this offline. Total sale is 180. There is sale is 180 crore in Q4, and in last quarter it was 170. 170. It is a growth of 5%. Yes, sir. And volume growth is 15%, right, sir? Volume growth? What do you mean volume growth? Between March 2021 and March 2022, the volume growth is 15%. No, I think I could not really understand you. जगदीश सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ आशीष जी, हाँ. ये पूछना चाह रहे हैं, अपना पर शीट का जो रियलाइजेशन है, प्राइस है, वो पिछले क्वार्टर, पिछले साल के Q4 के सामने ये साल में कम हुआ है क्या, एवरेज रियलाइजेशन? नहीं, कम कहाँ हुआ? क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ एवरेज रियलाइजेशन में वेरी ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स. यस, इट इज ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स. यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इट इज ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स. इट्स कंपेयरिंग द क्वांटिटी वर्सेस वैल्यू. Yes, absolutely. Yes, sir. I got your point now. Yes, sir. So sir, going forward, what do you think? How are these things gonna go back? I mean, ये product mix just keeps on changing every quarter, or how does it work out? Definitely it change every quarter. Okay. I'll get back in the queue, sir. Thank you. The next question is from the line of Sanjay Shah from KSA Securities. Please go ahead. Yeah, good afternoon, gentlemen. Sir, thanks for opportunity. Sir, मुझे पूछना था, हम लोग ने लास्ट टाइम लॉस थोड़ा मार्जिन कम हुआ है बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल. तो अभी आगे ये साल शुरू हुआ है, तो आपको कैसे लग रहा है, इन्वेंट्री पोजीशन कैसी है? और मुझे हमारा चैनल चेक ऐसे बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल के भी काफ़ी इश्यूज हैं सप्लाई साइड, तो हमें कोई दिक्कत आ रही है प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल, और कौन से रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉ मटेरियल में. एवरी रॉ मटेरियल इज अवेलेबल नाउ इट इज गोइंग लिटिल बिट रिड्यूसिंग स्टार्ट ऑलरेडी फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर. Even ocean freight is also started reducing little bit, but there is availability of raw material container, no shortage at all. और हमने प्राइस राइज भी ले ली है, तो हमें ले रही है, अभी चल रही है प्राइस राइज थोड़ी, पर प्राइस थोड़ी सी डाउन होनी शुरू हो गई है लिटिल बिट इन फोर्थ क्वार्टर. So in such we don't have any supply constraint, बराबर है? हम No, not at all. सो जो हमारा टारगेटेड रन रेट था अराउंड 70-80 करोड़ पर मंथ, वो हम कर सकते हैं, अचीव हो जाएगा हमारा? ये हो रहा है. और हमारा ये सॉलिड एक्रेलिक का कैसे चल रहा है सर? वो बढ़िया चल रहा है, वो भी अब स्टार्ट पिकिंग अप. ओके. और थोड़ा इसमें डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ के लिए थोड़ा हाईलाइट करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग ऑन दैट साइड, क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी ओपन मैनी आरडीसी, टोटल सेटअप. इवन लास्ट मंथ आवर सेल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी. सेल इज इंक्रीज, यानी कितना इंक्रीज हो पाया, और हम आगे ये साल क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 15-20% के करीब डोमेस्टिक में भी इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट में भी हुआ.
और एक्सपोर्ट में ज्योग्राफी वाइज कोई नई ज्योग्राफी में हम एंट्री ले रहे हैं अब, जैसे यूरोप में कर रहे हैं ज़्यादा? We have an exhibition in South America, in South America, okay. Bogota. Today it is going on. We are participating from India First Company, participating there. वहाँ होपफुल है, हमें होप है। पूरे मार्केट इज वेरी बिग मार्केट. We are already exporting some small quantity there. हाँ सर, तो आगे ये साल तो अच्छा रहेगा ना, जो लास्ट ईयर वॉलेटाइल गया उससे बेटर रहना चाहिए। Hopefully, yes, hopefully and definitely. Thank you, sir. Thanks for replying my question, sir. I'll come back in queue. Thank you. The next question is from the line of Rajesh Ravi from HDFC Securities. Please go ahead. Yeah, hi sir. Hello, am I audible? Yes, please continue. Yeah. Would you please suggest what has been the price increase taken like to like across your various products, primarily in the laminates over last 1 year and in the March quarter versus December quarter? Sorry, again, what do you mean by price increase? सर, अपने laminates का कितना price increase लिया है आपने लास्ट 1 साल में, एंड कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में आपके लैमिनेट्स का कितना दाम बढ़ाया है आपने? नहीं, ऐसे ना लैमिनेट्स में वही तो, अगर दाम हमारा इसी चीज बड़ा होता है इतना, फिर तो बिटा ही हमारा, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन बिटा। यही है, ईयर ऑन ईयर भी कितना इंक्रीज हुआ है? इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। किसी कंट्री में, किसी डोमेस्टिक में 10%, किसी कंट्री में 3%, किसी में 4%। पर दिस रीजन में कितना इंक्रीज लिया सर आपने? इट इज स्टिल गोइंग ऑन है, कुछ फिक्स नहीं है, किसी फिगर नहीं होती इसमें। कोई कस्टमर 5% मान जाता है, कोई किसी कंट्री में 2%, किसी में 4%। इट इज स्टिल गोइंग ऑन। डोमेस्टिक मार्केट में सर कितना इंक्रीज आया? फ्रॉम जून, कोई कहता है जुलाई में इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से। स्टिल गोइंग ऑन इंक्रीज। मैं सर अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 1 साल में डोमेस्टिक मार्केट में कितना प्राइस इंक्रीज हो पाया है? ऐसे ना पूरी फिगरें तो इसकी है, मैंने बताया ना 10-15% इंक्रीज हुआ है, पूरी फिगर तो नहीं है। नहीं, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कोई जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुआ। जो लो वैल्यू है जहाँ कम, वहाँ ज़्यादा बढ़ गया है। लाइनर ग्रेड है, वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है प्राइस। अब फिर ड्रॉप होना शुरू हो गया ड्यू टू ड्रॉप इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस। अच्छा, एंड दूसरा, आपके एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक सेल्स में मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का डिफरेंस कितना होता है? वो भी 10-15% होता है एक्सपोर्ट डिफरेंस। यस, मतलब विच इज हायर, डोमेस्टिक सेल्स मार्जिन इज हायर और एक्सपोर्ट सेल्स मार्जिन इज हायर? एक्सपोर्ट मार्जिन वहाँ एक्सपोर्ट में एक्सपेंसिव नहीं होते। डोमेस्टिक में देयर आर सो मच टीम, in export there is no much expenses. Okay, if I understand, आप अपने ही ब्रांड से बेचते हैं, राइट? एक्सपोर्ट मार्केट में भी? No, 60-70%. 60-70% is what? Own brand name, Stylum. Okay, एक्सपोर्ट मार्केट में, राइट? Yes, correct. So उसमें तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता होगा ना? नहीं, ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। we have no expenses at all. We have not opened any offices outside. अच्छा, फिर भी आपके नाम से ही आप लोग पोजीशनिंग कर पाते हैं 2/3 ऑफ योर एक्सपोर्ट सेल्स? We have put the name of our distributor, UK, Netherlands, Russia. We already put the name of our distributor. Okay. And आपका सर अभी ग्रोथ प्लान क्या है? ना ग्रोथ प्लान आप देख लो, लास्ट ईयर भी बढ़िया चल रहा है बेटा को छोड़ के। अब भी ग्रोथ प्लान होपफुली ठीक ही आएगा इस साल में। हाँ, लैमिनेट का हो गया ना एक्सपेंशन? हाँ जी, लैमिनेट्स में आपने भी कैपेसिटी बढ़ाया है ना? ना कैपेसिटी हमने लैमिनेट्स में नहीं बढ़ाई, सेम कैपेसिटी वी हैव, सेम कैपेसिटी, बट वी हैव नॉट रनिंग ऑन फुल कैपेसिटी। ओके, कोरोना के टाइम बढ़ा ली थी ना, वेटिंग फॉर दैट। सर एक जो आप लोग लिखते हो कि 3 लैम MDF लैमिनेट का ये लैमिनेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? That is pre-lam with hot coating, that is anti-finger MDF and high gloss MDF. Is it an MDF plant you are setting up or what? No, plant नहीं, हमने कभी नहीं कहा, we are not in MDF plant. Right, only you are giving lamination. We are importing. Okay.
समझा. ठीक है सर, थैंक यू. I'll come back and see. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Amanjit Singh from Oculus Capital. Please go ahead. Namaste sir, can you hear me? Yes, yes. सर मेरा पहला क्वेश्चन है सर, आपको क्या लगता है कि ये साल का रेवेन्यू कितना हो सकता है? जैसे आपने 37% डिलीवर किया पिछले साल और अभी 650 करोड़ तक आप कर सकते हो, तो आपको लगता है कि 950 करोड़ तक आप कर पाओगे इस कमिंग ईयर में? होपफुली जो आप कह रहे होंगे, वी विश एंड होपफुल फॉर दैट. बट सर जैसे विजिबिलिटी है आपको क्या लगता है कि क्या रेंज, अगर रेंज भी बता पाएंगे तो मदद होगी सर? नहीं वैसे है ना जी, वो रेंज तो आप तो सोच रहे हो. आई एम क्वाइट होपफुल वी कैन अचीव इट एंड वी शुड अचीव इट. Start is going good already. Our sale is increasing domestically as well as export, so quite hopeful. सर जैसे पिछले साल अपना मार्जिन जैसे पहले 17-18% हुआ करता था, पिछले साल 20% अपना एबिटा मार्जिन है, तो अभी तो जैसे 11% हो चुका है. तो आपको क्या लगता है कि कमिंग क्वार्टर में या फिर कमिंग साल में आपका कितना एबिटा मार्जिन हो सकता है? No, definitely I am quite hopeful we will recover that. आप देखो ना सर, वर्ल्ड वाइड there is so many big problems. हमने तो फिर भी अगर ओवरऑल देखो, we have a growth, top line is increased so much. ये तो वर्ल्ड में हर जगह ही रॉ मटेरियल प्राइसेज, ओशन फ्रेट, डिफरेंट प्रॉब्लम. जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया उसके रेंज बता पाएंगे सर? लाइक आप 17% जैसे वैसे बोलेंगे कि आप बोलेंगे 20% पॉसिबल है, कितना आपको लगता है रिकवरी हो सकता है पॉसिबल? जो आप कह रहे हो सब कुछ पॉसिबल है. तो फिर भी रफ आइडिया सर कितना सर? 17%? हाँ, होपफुली यस, श्योरली. अच्छा सर, और किसी और ने भी एक बारी मैंने शायद मिस कर दिया था, कॉल पूछा था कि पूरा जैसे पर शीट का आपका रियलाइजेशन जो होता है आपने कितना बढ़ाया है ये सिर्फ पिछले साल में? नहीं, मैंने बताया था ना पहले भी, शायद आप सुन रहे थे जो दूसरे पूछ रहे थे. इसमें ना कोई, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का गैप होता है ना जी, उसमें रॉ मटेरियल की प्राइसें जब बढ़ती हैं ना, कोई ज़्यादा इमीडिएटली लैमिनेट्स में बढ़ती नहीं है. जब कम होती हैं वो कम भी नहीं होता. ये तो एक ना बाई चांस इन माई टोटल लाइफ लैमिनेट्स 30 ईयर कैरियर, मैंने तो इतनी प्राइस इंक्रीज आज तक लाइफ में नहीं देखी जितनी सडनली इन 1 ईयर हुई. एक साइकिल है, ये साइकिल में प्राइस इंक्रीज तो ले लिया सर, अभी ले लिया, पर इतना नहीं लिया ना, इतना नहीं मिला. पर अब जो जैसे इवन इन स्पाइट ऑफ दैट फिगर, आई एम हैप्पी दैट वी अचीव दिस एबिटा मार्जिन टोटल ग्रॉस, नॉट क्वार्टर वाइज. वो तो हमारा इफेक्ट हुआ कि थर्ड क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस आर सो हाई, तो उसका इमीडिएटली इफेक्ट फोर्थ क्वार्टर में चला गया. अब वो प्राइसेस डाउन होनी शुरू हो गई हैं 5-10%. अब उसका इफेक्ट हमें मिलेगा आने वाले कमिंग क्वार्टर्स. सर बट आप अपने रेट तो कम नहीं करोगे ना, लैमिनेट के तो रेट कम नहीं करोगे? तो होते नहीं होते, जैसे बढ़े नहीं इतनी जल्दी, कम तो बिल्कुल नहीं होते ना जी. तो हमने बढ़ाई ही नहीं, इतने कम कैसे हो जाएंगे? हम तो लोगों को अब भी कह रहे हैं कि प्लीज इंक्रीज अवर प्राइसेस. कम होने का तो मतलब नहीं है ना. ठीक है सर, और एक और चीज जैसे आपने बताया कि जैसे अभी आपका एक्सपोर्ट का जो मिक्स है करीबन 60-40 है ना? 40% आई थिंक आपका एक्सपोर्ट है, करेक्ट? नो 60-65%. ओके सॉरी, उल्टा हो गया, 60-40. तो आप अपना डोमेस्टिक आप बढ़ा रहे थे, आपने पूरी टीम वगैरह सेटअप? हाँ, अब भी बढ़ रहा है. वो ऐसे है ना जी, वो गैप फिर जब डोमेस्टिक का बढ़ाते हैं एक्सपोर्ट का भी बढ़ जाता है. पहले तभी वो उतना ही चल रहा है, पर डोमेस्टिक इस साल में क्वाइट होपफुल 5-10% एक्सपोर्ट के वर्सेज इंक्रीज होगा. सर तो डोमेस्टिक का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फास्टर देन एक्सपोर्ट सर? सॉरी, आप डोमेस्टिक में ज्यादा फोकस कर रहे हैं सर इस साल? नहीं ऐसे है ना जी, फोकस एक्सपोर्ट में तो हमारा ब्रांड नाम चल रहा है ना जी. फोकस हम डोमेस्टिक में कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी कर रहे हैं. जो नई मार्केट मैंने बताया, टुडे देयर इज एग्जीबिशन इन साउथ अमेरिका, कोलंबिया, वी आर पार्टिसिपेटिंग देयर. 24 आवर की तो फ्लाइट ही है वहाँ. वी आर द फर्स्ट ओनली कंपनी, वी आर पार्टिसिपेटिंग. एक्सपोर्ट में भी हम ग्रोथ की पूरी जहाँ पॉसिबिलिटी है देख रहे हैं. इंडिया में तो कर ही रहे हैं. ठीक है सर, ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट. Thank you. The next question is from the line of Nikhil Gada from Bacchus Asset Management. Please go ahead.
हाय सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, पहला सवाल ये, जो हमने डोमेस्टिक में जो स्केल अप देखा है इन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, तो यहाँ से हम लोग इस बिजनेस को अगले एक साल में FY23-24 में इसको हम कहाँ तक आपका एक्सपेक्टेशन है कि इसको लेके जा सकते हैं? नहीं, मेरे को आई एम क्वाइट होपफुल 50 to 100% इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक में अभी भी गैप पड़ा है, बहुत बड़ा गैप है। हमारे प्रोडक्ट हमारा एक्सेप्टेबिलिटी है, वही था पहले हमारे पास कांस्टेंट था सप्लाई का, अब न्यू प्लांट के बाद हमारे पास वो नहीं है कोई भी। सो वी आर क्वाइट होपफुल वी इट विल इंक्रीज डेफिनेटली 50 to 100% दिस ईयर। मतलब आप बोल रहे हो कि करीब 400 करोड़ जो आपका ये 240 करोड़ है वो 400 करोड़ तक हो सकता है? हो सकता है डेफिनेटली। और सर, ये जो ग्रोथ आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये आपको कौन से एंगल से लग रहा है? क्योंकि जनरली जो डिमांड है वो तो 10-12% से ग्रो हो रहा है, सही बात है। तो पर हमारे को गैप है ना जी, हमारे को 25 ईयर में ब्रांड नेम तो बना ही हुआ है ना जी। प्रेजेंस हमारी इसलिए कम थी, वी हैव ए नो मच सप्लाई, नाउ वी हैव ए सप्लाई। पीपल अगर तो होता ना तो बदनाम ब्रांड हो, हमारा ब्रांड नेम तो एक्सेप्टेबल है ना मार्केट में। सही बात है। वही चीज आ रही थी, अगर आप लेके चलो कि हमने इस 34% और 66 एक्सपोर्ट सेल है, अगर पिछले साल में भी देखो हम लास्ट ईयर से तब भी इंक्रीज हुआ ही है ना हमारा 66% का डोमेस्टिक सेल में पिछले 21 से 66% इंक्रीज हुई है डोमेस्टिक सेल परसेंटेज वाइज। तो अब भी बढ़ेगा ही हमारा, वी आर क्वाइट होपफुल। और ये जो अभी जो फर्स्ट क्वार्टर में जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी भी सही दिख रही है हम लोग को, मतलब जो ये क्या चीज? हाँ जी, यस। अंडरस्टूड सर। सर, दूसरा सवाल, जो हमारा एक्रिलिक पैनल बिजनेस है, आपने प्रीवियस कोई पार्टिसिपेंट को बताया कि लास्ट क्वार्टर से हमारा 15-20% ग्रोथ है, बट जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि फिलहाल इसका बेस बहुत कम है। तो अगर हम लोग FY23-24 के हिसाब से इसको देखें, स्पेशली क्योंकि आपका नया लाइन भी आ रहा है, तो वो कॉन्टेक्स्ट से आप कैसे देखते हैं इस बिजनेस को? मतलब हमने ना इन दिस फ्रॉम द 1 अप्रैल हमने तो बहुत बड़ी टीम एक्रेलिक की बना ली है। वी हैव ऑलरेडी मेड C&F इन 4 C&F इन इंडिया बेसिस। स्टॉक इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इन लास्ट 1 वीक। जो हमने हेड भी हैं, ही इज आल्सो फ्रॉम द सेम लाइन, ही इज डिफरेंट ब्रांड नेम, मल्टीनेशनल कंपनी, 12 years. He already joined us on 1 April. Okay. थर्ड हमारी सेकंड मशीन भी लग रही है एक्रेलिक की। We ordered it 1.5 years back. It is already in the factory, going to install from this 16. Okay. So we are quite hopeful this year there will be very good sale of acrylic, export as well as domestic. सर, कोई एक नंबर आप बोल सकते हैं, इस पे ऐड कर सकते हैं? नहीं, नंबर क्या, बस हमको फिगरें जैसे हमें तो ये पता नहीं, जैसे पहले इतनी परसेंटेज वाइज ग्रोथ दी है लास्ट ईयर, वी आर क्वाइट होपफुल इस साल भी। सर, मतलब इसमें कोई ऑर्डर बैकलॉग जैसा कुछ है क्या हमारा जो इसमें हो गया, जो लैमिनेट्स में हो रहा है, एक्रेलिक में नहीं अभी हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ओके, नहीं अभी नहीं। समझ गया। लेकिन ये जो नया लाइन है आप बोल रहे हो कि ये क्वार्टर से शुरू हो जाएगा? बस विदिन 2.5 मंथ में लग जाएगी, क्योंकि कोरिया से मशीन है, जर्मन से इंस्टॉल पीपल दे विल कम ऑन 16 of this month. 1.5 to 2 month लग जाते हैं इंस्टॉलेशन। सर, तो फिर इसके बाद बेसिकली इसका टोटल पोटेंशियल अराउंड 400 करोड़ का हो सकता है? हाँ जी, 300 to 400 मिनिमम। अंडरस्टूड। और सर, जस्ट लास्ट एक बुक कीपिंग सवाल था सर, ये जो आई थिंक आपने कुछ आपके फाइनेंशियल रीस्टेट किए 3Q और 4Q के, तो जो खैर अभी आए हैं। क्या किया जी? फाइनेंशियल्स आपने थोड़े रीस्टेट किए, आई थिंक 3Q का आपका रेवेन्यू नंबर्स थोड़ा आपने बढ़ाया है, एंड वी हैव सीन अदर इनकम जो 3Q का है। नहीं, हमने बढ़ाया नहीं है, जो एक्चुअल है जी ये बढ़ाई नहीं है, वैसे नहीं बढ़े। नहीं, वो बड़े नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपने कुछ रीस्टेटमेंट किया होगा, आई थिंक सम। नहीं, वो बताते हैं जी आपको, वो हमने को ज्यादा रीस्टेटमेंट नहीं किया, हमारा जो करेंसी फ्लक्चुएशन का फिगर था जो सेल से आता है, डेटा से आता था, उससे हमने ऊपर का टॉप लाइन अदर इनकम से लेकर के वहाँ, इसके अलावा देयर इज नो अदर चेंज। सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू, एज इन थोड़ा स्लोली बोलेंगे सर? जो माल हम सप्लाई करते हैं, जो डेटा से हमने कलेक्शन जो आता है हमारे को, करेंसी फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट होता है उसका, दैट इज ए पार्ट ऑफ सेल। ओके, उसी पर इंसर्ट किया हमने, पहले अदर इनकम में शो करा था, और हमने सेल के अंदर लिया, देयर इज नो अदर चेंज।
ओके, और तो इसलिए हमारा अदर इनकम बेसिकली 3Q का नेगेटिव हो गया बोल रहे हैं? या डेफिनेटली सर। और सेम चीज 4Q में भी हुआ है, क्योंकि 4Q में हमारा अदर इनकम बहुत ज्यादा हाई है। वो 4Q में जो अदर इनकम आ रही है उसमें टोटल जो 7 करोड़ के आसपास की आई थिंक इनकम है, उसमें 6.64 करोड़ की जो इनकम आ रही है वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है जो हमें कैपिटल गुड्स के केस में मिला है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। तो बुक किया हमने। अंडरस्टूड सर, ठीक है सर, आई गेट योर पॉइंट। सर लास्टली आपने बोला कि ये जो 11% जो एबिटा मार्जिन था वो सॉर्ट ऑफ एन वन ऑफ था, क्योंकि जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री था बेसिकली हमारे सिस्टम में, तो इट विल गो बैक टू 15-16%। Yes, surely. Definitely, there will be a Definitely. Okay sir, okay. Thank you so much for answering all my questions. All the best. Good. Thank you. The next question is from the line of Venkatesh Shekhar, an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, please. Sir, I would like to know about backward integration with respect to raw materials like melamine, which is one of the key ingredient, I suppose. No, it is not key. It is one of only 12 or 13% share on the laminate market, melamine. Okay, sir, is there any plan to for backward integration, sir? No, it is a very big plant, maybe 1,000 crore. Only one plant in India, GSFC. It is a government plant. India में तो दूसरा plant ही नहीं लगा अभी तक कोई. And the raw material prices have come down in Q1, sir? Little. There is already started little declining. Melamine काफी down हो चुकी है already. Sir, one more thing is that I would like to know about our plywood business, the plant we are making. Plywood हमने temporarily, we have enough capacity here. We have not, the government वो हमने separate company थी, वो हमने little bit defer कर दिया. Otherwise we have already land, licenses already, consultant is there. कुछ महीनों के लिए defer कर दिया. We want to get the little more sale stability in laminates and acrylic business. Okay, sir. Sir, it is deferred temporarily or next year? Temporarily, till temporarily. Okay, next. Sir, what about export to America, sir? Last time you told we are... Very good market. I told you today we are participating in South America. For this yes, reason. sir, I saw there is an exhibition we are participating. I'm happy. Correct. We are there. What about United States, sir? United States? But this is part of United States is near adjoining to that. People are coming from United States also to see the exhibition. Okay, sir. So definitely this year we will be able to make 15 to 20% margin, sir. EBITDA. Why not? Definitely. Because last year we had a pretty impressive margin between Q4, Q1, Q2. Surely होगा. Okay, sir. Thank you, sir. Any information on dividends, sir? Yes, वो तो चलेगा ही. We have to. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Congratulations on a difficult achievement, yes, sir. Thank you very much. I appreciate you. Yeah, thank you, sir. Thank you. The next question is from the line of Pranav Mehta from Equirus Securities. Please go ahead. Yeah, thank you, sir, for taking my question. Sir, मुझे समझना था कि ये जो acrylic business है, उसमें how is competition shaping up in the domestic market? Because what I've heard is that other people are also looking to move into this business very aggressively. So, नए प्लांट आ रहे हैं नहीं और आ रहे हैं. अच्छा, तो सर कितने लोग मतलब नहीं आप पूछ रहे तो नहीं. आई एम आस्किंग यू रियली प्लीज. आई डोंट नो. मतलब अच्छी बात है अगर आएंगे तो देन मार्केट विल ग्रो. ओके, तो सर आपके एंड से आपको मतलब इंडिकेशन नहीं है कि कंपटीशन है ना. मतलब इंडिकेशन पहले तो है नहीं. अगर कोई आएगा भी इट विल टेक मिनिमम 1.5 year to 2 year. वो तो अच्छा है. इम्पोर्ट कम हो जाएगा. अब ये इम्पोर्ट ऑफ 600-700 करोड़ वो कम हो जाएगा अगर और डोमेस्टिक प्लेयर आ जाएंगे. इट इज गुड फॉर द कंट्री. तो मेक इन इंडिया हो जाएगा ना सर. ओके सर, ठीक है. और सर हमने जो मतलब हम बोल रहे हो कि आप डोमेस्टिक में भी फोकस कर रहे हो, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कितना एडिशन और कितना आरडीसी आपने ऑलरेडी वी हैव 6 आरडीसी. 6 आरडीसी है और हो चुके हैं. बहुत फुल टीम बनी हुई है. मोर देन 160-170 people are there already on roll. Today our whole team is in Bangalore. Okay. That is going good. Turnover is increasing. ओके. एंड सर आपका मतलब अभी का जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मतलब इंडिया में वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ में? पहले अब जैसे नॉर्थ में तो है ही ऑलरेडी
हमारा focus more South market is the biggest market, sir. We are focusing South. Slowly, we are not in hurry to capture whole India. North, South, then we will go for the East later. ओके, सो अभी आपका साउथ और वेस्ट में ज्यादा फोकस है और ईस्ट में आप बाद में जाएंगे. Yes, correct. ओके. एंड सर जस्ट ऑन टॉप लाइन एंड एबिटा मार्जिन आपने बोला, तो FY23 में हम कितना परसेंटेज ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन में? देखो जितनी पहले से पिछले साल हुई है उतनी तो होनी चाहिए. ये ज्यादा की होप कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वार्टर में पता चल जाएगा. इसमें फर्स्ट मंथ स्टार्ट इज वेरी गुड. लेट्स होप स्टार्ट इज गोइंग गुड, देन इट विल क्रॉस लास्ट ईयर आल्सो. ओके. और सर हमने बीच में जो लास्ट क्वार्टर में बोला था कि शिपिंग फ्रेट कॉस्ट अभी भी हाई है, तो स्टार्टेड अभी ज्यादा है पर कम होनी शुरू हो गई है. ओके, सो अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर इज नो प्रॉब्लम. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ कंटेनर. वो कार्टल टाइप बना हुआ ना, उनको तकलीफ हो रही है काम करने में. स्लोली दे विल डाउन. ओके, बट सर पीक से कितना 15-20% कम हो गया होगा आपका फ्रेट कॉस्ट कैसे? सॉरी, हेलो सर मैं बोल रहा हूँ नहीं हाँ 15-20% तो कम हो गया ना. जैसे यूरोप का पहले 9,000 पहुंच गया था, अब 7,000 पे आ गया. पर इन्होंने बढ़ाई इतने दिए थे ना, 15-20% कोई मैटर ही नहीं करते कम हुए. राइट सर, राइट. ओके. और सर एक लास्ट क्वेश्चन था एक्सपोर्ट पे. सो मेनली एज यू सेड कि आप अभी साउथ अमेरिका में यू आर पार्टिसिपेटिंग. सो अभी इंडिया के लिए कौन सी रीजन सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है? ये अपॉर्चुनिटी तो अब तो ग्लोबली ही लैमिनेट्स की ना, इंडिया से ग्रोथ रेट एवरी ईयर 15-20% ग्रोथ रेट हो रहा है हर मार्केट में. यूरोप देखो, वी आर नंबर 1 इन यूरोप. फार ईस्ट भी बढ़ रहा है, अमेरिका बहुत बढ़ रहा है डे बाई डे. एवरीवेयर इज ऑलमोस्ट सेम टाइप की. अब वेरी होपफुली रशिया में और ज़्यादा होगा क्योंकि दे हैव नो गुड रिलेशन. दे आर मोस्टली इम्पोर्टिंग फ्रॉम यूरोप. यूरोप से उनकी एंट्री बैन हो जाएगी. वी आर होपफुली ड्यू टू दिस टेंशन Ukraine and Russia will be very good market of upcoming market for export. ओके. एंड सर इसमें अदर एक्सपेंसेस में आपका जो इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसमें कुछ वन ऑफ था या बेसिकली आपका वही आ गया नहीं ज़्यादा ओशन फ्रेट भी है ना? ओके, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. Thank you. The next question is from the line of Kanishka Sarkar from an individual investor. Please go ahead. नमस्ते गुप्ता जी. कपल सवाल है मेरे. सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपने कहा कि मार्केट में काफ़ी गैप है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ. तो अगर उसमें गैप है और अगर सप्लाई कम है, तो ऐसा क्यों है कि जो प्राइसिंग पावर आपके पास में नहीं है जितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे आप कह रहे थे कि प्राइस बढ़ाने के लिए काफ़ी तकलीफ हो रही है. जब आप बढ़ाने की बात करते हैं तो लोग उसको आगे के क्वार्टर पे टाल देते हैं. तो उसको मतलब सिस्टमेटिकली आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? और आपके पास ब्रांड भी है, तो कहने का मतलब अगर ब्रांड भी है और अगर मार्केट में गैप भी है, सो आइडियली आपके पास में प्राइसिंग पावर दूसरों से ज़्यादा होनी चाहिए. सो कैन यू कमेंट ऑन? राइट. जैसे जो हमारी कंपटीटर हैं 3-4 बड़े, जिनका नाम ब्रांड नेम डोमेस्टिकली हमारे से पहले ज़्यादा है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती. हमारा भी बढ़ता जा रहा है स्लोली. मे बी इट विल टेक फ्यू मंथ और 1 year मोर टू मेक ए ब्रांड नेम वाज देयर, बट उसकी पूरी डिमांड नहीं थी. अब डे बाई डे डोमेस्टिक में हमारा नाम और बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे एक्सपोर्ट में कुछ मार्केट में जहाँ हमारा ब्रांड नेम चलता था, वेरी इजी टू इंक्रीज द प्राइसेस. जहाँ हम OEM कर रहे हैं वहाँ डिफिकल्ट था बढ़ाने के लिए प्राइसेस. तो डोमेस्टिक में अगर ना बढ़ी, जैसे प्राइसेस डाउन होनी शुरू होगी रॉ मटेरियल की, फिर देन देयर इज नो नीड टू डिक्रीज द प्राइसेस. जिन्होंने बढ़ाई है उनको डिक्रीज करनी पड़ेगी. हमारी तो ज़्यादा बढ़ी भी नहीं है. ओके. ठीक है सर. ये लेके चलो ना, अगर इन दिस सिचुएशन व्हेन देयर इज सो बैड situation of raw material, bad ocean freight, even then gross EBITDA is like this, you can understand, and we cannot increase our prices. It means we already controlled our expenses, other things. अगर हमारी सेल भी बढ़ेगी
इस 23 में, that will also affect our EBITDA. मैं कंप्लीटली आपकी बात मानता हूँ, बट वो है कि वेरिएबल ये है कि अगर मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइसेस, फ्रेट कॉस्ट कम हुई तो फिर हमको बेनिफिट है, बट आई एम सेइंग समवेयर हमें ये भी देखना होगा कि स्ट्रैटेजिकली क्या हम प्राइसिंग पावर अपने हाथ में ले सकते हैं धीरे धीरे करके. मतलब आई अंडरस्टैंड आपकी बात. जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना मार्केट में पर ब्रांड नेम की, तब यू आर राइट, देन वी कैन गेट दैट एडवांटेज. ठीक है सर, ये मेरा पहला सवाल था. सर दूसरा सवाल है ये कि आपने कहा कि 60% प्लस हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स में जाता है और हमारे पास में प्राइसिंग एडवांटेज ऑलमोस्ट 15% to 20% में मान के चल रहा हूँ. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट लुकिंग एट इंटरनेशनल मार्केट. 10 to 15. तो अगर मेरे पास में अगर ये एक्स्ट्रा मेरे को मार्जिन मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, सर फ्रेट कॉस्ट जो मैं ट्रैक कर रहा था वो करीब 9,000 रुपये कंटेनर पे चल रहा था, बराबर. तो अभी जैसे आपने अभी बताया कि 9 से सॉरी 9,000 रुपी कौन सी? नहीं डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ. यस यूएस डॉलर्स, मैं डॉलर्स में एक्सपोर्ट मार्केट की बात कर रहा हूँ ना. तो वो $9,000 पे काफी दिन तक बैठा था. वो बीच में फ्लक्चुएट होता है, वापस वो ऊपर चला जाता है. तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि अगर हमारा 60% एक्सपोर्ट मार्केट पे रिलायंस है और अगर ये आपको लग रहा है कि ट्रेंडिंग डाउन है मतलब फ्रेट कॉस्ट, तो आपको कोई इंडिकेशन है फ्रॉम द जो फ्रेट बुक करते हैं कि आपने कहा कंटेनर अवेलेबिलिटी बढ़ गई है पहले से, तो आपके हिसाब से अगले 6 महीने में आपको क्या इंडिकेशन है कि फ्रेट कॉस्ट कहाँ तक नीचे आ सकता है? कुछ पहले नहीं, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता, इनका कार्टेल टाइप बना हुआ है. पहले तो ये लास्ट ईयर वी आर जस्ट पेइंग $900 ओनली, 800 to 900. कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता इस चीज की, मैं गलत करूँ. तो जब कार्टेल बन जाता है ना, किसी स्मॉल कंपनियों को 2 सालों में इन्होंने बैंकरप्ट होगी, किसी ने बंद कर दिया, 3-4 कंपनी बड़ी रह गई है, वही उसको डिक्टेट कर रही है मार्केट. ओके, तो क्या मेरा ये समझना सही होगा कि अभी भी ये अनसर्टेनिटी बना रहेगा कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है? जब बिल्कुल बना रहेगा जी. ठीक है सर. अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ. सर आपने लास्ट जब मैं फर्स्ट क्वार्टर पे आपसे बात कर रहा था तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप बहुत स्ट्रैटेजिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने टीम बिल्डिंग शुरू की थी, सेल्स टीम आपने बनानी शुरू की थी. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था सर उस टाइम पे कि एक मेट्रिक आप ये रखिएगा कि जो सेल्स, पहली बात की सर एज ऑफ नाउ आपके सेल्स टीम में कितने लोग हैं डोमेस्टिक में? 5-10 जाते आते रहते हैं, 160 से 170 के बीच. 160 से 170 के बीच. तो यानी कि मान के चलते हैं 150 आपके सेल्स एम्प्लॉयज हैं जो मार्केट में फ्रंट एंडिंग कर रहे हैं. सर तो इनके जो आपके जो क्वार्टर वाइज, अब क्वार्टर 1, 2, 3, 4 अगर हम लेके चलते हैं तो आपके बिजनेस में ऑलमोस्ट 60% की डोमेस्टिक में ग्रोथ आई है ईयर टू ईयर अगर मैं देखता हूं तो, विच इज़ अ वेरी गुड वन. ऑफकोर्स बेस छोटा था. सर मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि इंडिविजुअल जो सेल्स करते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी पे आप मेजर कर रहे हो कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? नहीं वो जो राइट है, मेरे को याद आ गया आपने पूछा था क्वेश्चन. वो अच्छे है जी. अब हमने इनकी इंडिविजुअल लगाने के लिए हमने सेल्स फोर्स का पैकेज भी लिया हुआ है, जस्ट लाइक ए सैप. जस्ट लास्ट मंथ 1 अप्रैल से शुरू हुआ है. ऐसे ना जो अगर आप सेल की इंक्रीज देख रहे हो 60%, आई एम श्योर भी आने वाले टाइम में ना जी, अब जितने लोग आ रहे हैं ना, 2 साल तो कोई ट्रैवलिंग नहीं हुई ना डोमेस्टिकली ना एक्सपोर्ट में, इतने लोग एक्सपोर्ट से आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं प्लांट देख के. दे आर वेरी हैप्पी. डोमेस्टिक लोग भी आने शुरू हो गए हैं, जो प्लांट देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं. वेरी गुड. सो आई एम क्वाइट होपफुल दैट ग्रोथ विल डेफिनेटली सेम, अगर बड़ी ना जितनी पिछले साल हुई है ना, इस साल भी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही. यू विल सी नेक्स्ट वी विल मीट आफ्टर 3 months. बिफोर 3 months डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस. Sorry to interrupt. May I request Mr. Sarkar to please rejoin the queue? We have participants waiting for their turn. I just have a last question. Can I just ask the last question? You can ask me as many you want. Right sir. Sir, the last question is now ये मेरी खुद की मैंने जो मार्केट में थोड़ी बहुत रिसर्च करी बिकॉज बीइंग ए शेयर होल्डर, सो मैं अपनी फीडबैक देता हूँ. मैं बैंगलोर से हूँ सर. एक टाइम था 1 साल पहले स्टाइलम की मतलब विजिबिलिटी बहुत कम थी, बट माई अंडरस्टैंडिंग नाउ इज दैट देर इज सम पॉकेट्स ऑफ विजिबिलिटी ऑफ स्टाइलम प्रोडक्ट्स, बट मार्केटिंग पे सर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. नो सर, यू आर फ्रॉम बंगलौर.
We Yes, are I am from about Bangalore. 30 people. We are in marketing training program going on in Bangalore. In last very 2 good, months, very good. our sale is increased double in from Bangalore only. Oh, excellent, sir, excellent. Because ये मैं जो आपको feedback दे रहा हूँ, almost like a quarter back. If you are in Bangalore, our director Manav Gupta is already in Bangalore for the last 4 days. Oh, it will be wonderful to, sir, I'll connect with you separately. If I can connect with him, that will be wonderful. So, thank you so much. Thanks a lot. Thank you. The next question is from the line of Varun Jain from Edelweiss. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर. मेरा सवाल ये था, आप लोग इस साल कितना कैपेक्स करने वाले हैं? कोई नहीं, नथिंग मेजर, कोई मेंटेनेंस में कुछ माल. नो नीड फॉर एनी कैपेक्स फॉर दिस ईयर. अच्छा, और आपका नियर फ्यूचर में अगले 2-3 साल में क्या प्रोजेक्शन है कैपेक्स का? ऐसे नहीं, जब इसकी टर्नओवर पूरी कर लेना ये 1-2 साल, तब देन वी विल डिसाइड नेक्स्ट ईयर. पहले जो इसमें कैपेसिटी वगैरह पड़ी है नहीं. आपका अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? 60 to 65% only in laminates. Okay sir, thank you. Thank you. The next question is from the line of Nikhil Agrawal from VT Capital. Please go ahead. Good evening, sir. Sir, जो आपका 14.3 million capacity है, that includes acrylic sheets as well? No. Without, they are asking only HPL. I mention HPL. उसकी तो अभी यूटिलाइजेशन इसकी तो 95% ही पड़ी है ना acrylic की. तो किसका 95% है? ये अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा ना, ये अभी स्टार्ट ही किया है ना, जस्ट फ्रॉम लास्ट 2 months. हाँ, ठीक है. और जो आपने जो सेल्स फिगर दिया 2.3 मिलियन शीट का, वो भी सिर्फ लैमिनेट की है, राइट? यस. तो आपका एवरेज रियलाइजेशन कितना होगा? आपका एक्रेलिक का सेल्स कितना था इस क्वार्टर? सॉरी, एक्रेलिक का सेल्स इस क्वार्टर में, मतलब Q4 में? क्वार्टर में नहीं, अब मैंने बताया ना, अभी हमने पहले ही बताया था. अभी फ्रॉम 1 April वी ऑलरेडी ओपन C&F एजेंट फॉर इन इंडिया. टोटल टीम ऑलरेडी ऑन द रोल. वी आर वर्किंग, वी आर क्वाइट होपफुल. आपको नेक्स्ट क्वार्टर में बताऊंगा भी कितनी फिगर अचीव कर सकते हैं. अच्छा, मतलब इस क्वार्टर Q4 में उतना कुछ सेल्स भी शुरू हो चुका है हमारा ऑलरेडी एक्रेलिक यूएस से. अच्छा, हाँ, मतलब वो तो चालू जाता है. मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि Q4 में आपका एक्रेलिक का कुछ सेल्स नहीं हुआ? हाँ जी, Q4 में आपका एक्रेलिक शीट का कोई सेल्स कुछ नहीं हुआ? मतलब नहीं, इस क्वार्टर में होगा, लास्ट ईयर में नहीं है ज्यादा. अच्छा. और आप लोग का ये प्लाईवुड का कब तक डेफर होगा? मतलब प्लांट कब तक स्टार्ट होगा? एनी आइडिया? उन्होंने डेफर कर दिया ना, जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी 24 तक डेफर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया. तभी हमने कुछ आप जैसे लोगों ने हमें सजेस्ट किया, वी शुड डेफर इट, वी शुड नॉट गो फॉर दिस अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट राइट नाउ. फर्स्ट यू फोकस ऑन योर एक्रेलिक एंड HPL फर्स्ट. अच्छा, हाँ सर. एंड सर, लाइक जो आपका रॉ मटेरियल है, मेलामाइन और क्राफ्ट पेपर, डेको पेपर, ये सब आपके पास आपको कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? एंड एक्रेलिक एज वेल, फॉर एक्रेलिक रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? मेलामाइन तो हम यूरोप से ऑलरेडी इम्पोर्टिंग. क्राफ्ट पेपर 80% 90% इज डोमेस्टिक. एंड एक्रेलिक का भी कुछ डोमेस्टिक है, 80% वी आर इम्पोर्टिंग. Acrylic 80% you are importing? Raw material, yes. Okay. And sir, एक लास्ट क्वेश्चन था कि आपका ये जो रेवेन्यू जो आपका प्राइस हाइक आपने बोला था कि आप अभी जो रॉ मटेरियल कट हो रहा है, तो आप इतना प्राइस कट भी नहीं लोगे, है ना? क्या चीज? आप रॉ मटेरियल जो प्राइस का रॉ मटेरियल का जो गिर रहा है अभी से, Q4 से जो रॉ मटेरियल में जो फॉल आ रहा है, तो आप प्राइस कट भी उतना नहीं लोगे मार्केट में? नहीं, प्राइस डाउन होती नहीं ना. पहले हमने इतनी बढ़ाई नहीं, अब डाउन कैसे हो जाएगी? नहीं होती. हाँ, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. The next question is from the line of Pranav Mehta from Equirus Securities. Please go ahead.
थैंक यू सर। सर मुझे जानना था कि एक्सपोर्ट मार्केट में आप लोग कुछ प्राइस हाइक ले पाए हो क्या? हाँ, ले चुके हैं, राइट, करेक्ट। ओके, तो सर कितना प्राइस हाइक लिया होगा? ऐसे जी, वो तो मैंने बताया था पहले कि कोई 3%, कोई 5%, कोई 8%, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री एंड कस्टमर टू कस्टमर। ओके, सो सर एवरेज कितना 5-6% हुआ होगा? 5-6% होगा डेफिनेटली। ओके, और ये सब आपने सब कब लिया था, 4Q में या 3Q में? 4Q उससे पहले ही मिला था, उसके बाद में प्राइस डाउन होने इसलिए राइट रॉ मटेरियल की, तो फॉर दिस रीजन अभी जरूरत नहीं है बढ़ाने की। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Alisha Mahawla from Envision Capital. Please go ahead. Hi sir, good afternoon. सर ये आपसे समझना था, इस साल आपने जो 30% टाइप की वॉल्यूम ग्रोथ की है पूरे साल में, जो आपने कहा है कि डोमेस्टिक मार्केट से भी काफी हेलो, थोड़ा सा लाउड। अभी सुनाई दे रहा है आपको सर? पूरा नहीं सुन रहा, थोड़ा सा। हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दे रहा, आप पूछ रहे हो 35% इंक्रीज किया, वही ना? हाँ, मैं पूछ रही थी कि पूरे साल में हमने 32% जितना वॉल्यूम ग्रोथ किया है और ये ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट में आई है, तो ये मार्केट शेयर जो हम गेन कर रहे हैं ये अनऑर्गेनाइज प्लेयर से कर रहे हैं या कुछ बड़े प्लेयर्स? नहीं, बोथ ऑर्गेनाइज्ड प्लस ऑर्गेनाइज्ड से ले रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ऑलरेडी बढ़ रही है HPL की डोमेस्टिक। ठीक है, और आगे जाके आप बोल रहे हो 23 में भी हम ऐसा 30%? Yes, why not? We have set up too many people, RDC already, distributor network is already increasing. So we sure it will definitely go like this. ठीक है सर, और सर हम और कोई बिल्डिंग मटेरियल मतलब प्लाई वाला तो हमने प्लान डिले कर दिया है, हम और कोई सेगमेंट में सोच रहे हैं जाने का? ये तो एक्रेलिक का सेगमेंट इतना बड़ा पड़ा, पहले उसको तो स्टार्ट कर लेना, मैं दोनों नेक्स्ट ईयर सोचेंगे सर, पहले इसको थोड़ा सा अचीव कर ले। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Yogansh Jeswani from Mittal Analytics. Please go ahead. Hi sir, thank you for this opportunity के लिए। सर एक्रेलिक शीट में हम लोग ने जो कैपेसिटी डाली और जो 1 लाइन आप और अभी सेटअप करने जा रहे हैं, जो कोरिया से आप मशीन बता रहे हैं, तो अब इसके बाद टोटल अपनी एक्रेलिक की कैपेसिटी कितनी होगी? कैपेसिटी इसकी शीट वाइज तो 35,000 शीट पर मंथ बनती है जी, वैल्यू वाइज इट कैन बी 3 to 400 करोड़। ओके, 35,000 पर मंथ सर? पर मंथ। ओके, एंड सर जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है, इसमें से आपने एम्प्लॉय काउंट तो बताया, सेल्स टीम आपकी 150 के आसपास लोगों की है, इसी तरीके से सर अपने डीलर नेटवर्क के बारे में थोड़ा बताएंगे, कितना बड़ा अपना डीलर नेटवर्क है और ये फॉर HPL एंड एक्रेलिक बोथ सर? नहीं, एक्रेलिक तो हमने बताया ना, अभी स्टार्ट किया, अभी हमने C&F बनाए हैं 3 ऑनलाइन फ्रॉम 1 April। वो तो इंडिया लेवल में पता है, वी नो द मार्केट, वी आर फर्स्ट इन इंडिया, इतना इम्पोर्ट पहले हो रहा है, इट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, मेक इन इंडिया, सेम क्वालिटी, सेम एवरीथिंग। Domestic HPL we already have a distributor 160, 180 बढ़ते रहते हैं, every day we are, every month we are increasing few, बढ़ रहे हैं। सर अपना डोमेस्टिक में बिगेस्ट कौन सा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सेल्स? साउथ है। स्टेट कौन से? साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। स्टेट में नहीं, स्टेट्स में कौन सी है सर अपनी मेजर स्टेट? कर्नाटका में बहुत है आजकल, बेंगलुरु में बहुत सेल है जी, पंजाब में बहुत सेल है उधर। ओके सर, अब आगे के लिए जैसे जो अपनी इतनी बड़ी कैपेसिटी सेटअप है, तो इस कैपेसिटी को सेल करने के लिए आपको डीलर नेटवर्क को भी और बढ़ाना पड़ेगा कि इसी डीलर बढ़ रहा है जी, बढ़ रहा है, तभी सेल बढ़ेगी नहीं, बढ़ ही रहा है। टारगेट है सर बाय ईयर एंड कितने डीलर्स ऐड करने का टारगेट है हम लोग का, और कौन से होता है ना जी, डीलर ऐड करना इज नॉट ए इशू, वो तो देखना है आपने जी क्वालिटी डीलर कौन से हैं। ये डीलर अगर आप दूसरे छोटे डीलर ले लो, चाहे 1000 बना लो, बड़े 100 बना लो, उससे ज़्यादा सेल कर देंगे। वी आर फोकसिंग ऑन मोर A and B टाइप ऑफ डीलर। अच्छा, अंडरस्टूड सर।
ठीक है, थैंक यू. Yes, thank you, sir. Thank you. The next question is from the line of Vignesh Iyer, an individual investor. Please go ahead. सर जो ये मेलामाइन जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट के हिस्से में काफ़ी बड़ा है, मतलब 10 या 11% होगा रफली. तो आज के दिन में सर उसका कितना कॉस्ट घटा होगा? नहीं, प्राइस बहुत कम होगी जी. बीच में तो 250-300 रुपये किलो हो गया था, अब 150 रह गया जी. बहुत कम हो गया, कम होता जा रहा है. अगर अभी 350 किलो था, 350 रुपये है पर किलो, तो पहले कितना? नहीं, 350 हुआ था एक दफा कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, तो कम होता होता अब नाउ इट इज ऑलमोस्ट $1,500-600 पर मीटर टन इम्पोर्ट प्राइस. डोमेस्टिक में चल रहा है 140-142, 250 की एवरेज था पहले. मैंने बताया कोई मेलामाइन मैटर नहीं करता, और बहुत चीजें हैं. कोल है, कोल फ्यूल बहुत महंगा हो चुका है, फिनॉल आ गई, फिर क्राफ्ट पेपर, बेस पेपर. देयर इज नॉट ओनली वन पैरामीटर, अदर पैरामीटर आल्सो. Okay, right sir. So sir, another question, I heard this call where आपने बताया कि हम डोमेस्टिक का सेल जो अभी 240 करोड़ है वो 400 करोड़ कर देंगे इस साल में. तो सर मैं सिर्फ जानना चाहता कि क्या प्लान है, मतलब क्या नंबर ऑफ डीलर्स आप बढ़ाओगे आगे जाके, कि क्या प्लान है कंपनी का, कैसे वो मुमकिन कर पाएंगे? नहीं ऐसे है ना जी, वो मैंने बताया ना बढ़ ही रहा है ना जी. पिछले साल से देखो कितना चेंज हो गया. जैसे जैसे ये डीलर नाम बनता जाता है, डीलर बढ़ते ही जाते हैं ना एवरी मंथ. राइट. लेकिन कैसा है ना, 240 से 400 जो है वो काफी बड़ा जंप है. नहीं, तो इसलिए जानना था कि तो मैंने कहा 400 तक कर लेंगे, 350-400 है ना. एक दफा तो जंप मार्केट वर्ल्ड इंडिया कितना बड़ा पड़ा है, 350 हो जाएगी, 400 ना हुई तो. ये जब इतनी वर्किंग कर रहे हैं, इतनी उस पर जोर लगा रहे हैं, इतने RDC हो गए, इतने डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, बंगलो चल रहा है काम. आई एम क्वाइट होपफुल वी विल. ओके, शुक्रिया सर, इतना ही था मेरे तरफ से. थैंक यू सर, थैंक यू. Ashish. Thank you. Yes, Madam Ashish. The next question is from the line of Devang Mehta from B Capital. Please go ahead. हेलो, नमस्ते गुप्ता जी. नमस्कार जी. ये मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस में जो समझती वाली कि अपना एक्सपोर्ट बिजनेस में हम कितना ब्रेकअप है अपना डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं और कितना OEM को हमारा सेल्स होता है? नहीं, मैंने एक दो दफा पहले भी बताया ना, ये हमारा ब्रांड नेम पे 60-70% इज अवर ओन ब्रांड नेम, 30-35% इज ऑन OEM. OEM भी है ना जो वो दे मेंशन दैट वी आर बाइंग फ्रॉम स्टाइलम इंडस्ट्री. कुछ परसेंट ही है जो विच पीपल दे हाइड द मैन्युफैक्चरर नेम. अच्छा, बराबर. और जो हम बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में 30-35%. और जैसे मैं 5 साल का ट्रेंड भी देख रहा हूँ तो हमने मोर देन डबल 200 करोड़ 17 में हमने सेल करी थी. अब हम 450 करोड़ ऑलमोस्ट करे इस साल. तो ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ मतलब एग्जिस्टिंग, अगर इसको आप ब्रेकअप कर पाए कि एग्जिस्टिंग कस्टमर कितना ग्रोथ कर रहे हैं और न्यू क्लाइंट. नहीं, हमारा डे बाई डे ब्रांड नेम ज़्यादा ग्रो कर रहा है एवरीवेयर. क्योंकि नाउ व्हेन वी स्टार्टेड वी तब चाहता था जो मर्जी कस्टमर मिल जाए. नाउ वी आर आल्सो चूजी अबाउट द कस्टमर. जहाँ भी हम जाते हैं, हम भी हमारे प्रेफरेंस इज ऑलवेज ऑन द ब्रांड नेम. हाँ, वो दैट इज अंडरस्टैंड. ये उधर ही बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज. वी आर मोर इन दैट परसेंटेज. जैसे हम अभी हमारे कितने कस्टमर बेस होंगे और 3 साल पहले कितने होंगे, अगर कुछ आप रफ आइडिया. वो तो मेरे को फिगर मैं आपको फिर लिख के बता दूंगा. अभी इतनी तो याद नहीं है, इतना पता कि वी आर एक्सपोर्टिंग मोर देन 70 कंट्री नाउ. पहले 60 था. वो बेस बढ़ रहा है एवरी, यू कैन से एवरी मंथ समथिंग देयर इज सम लिटिल एडिशन. अच्छा, बढ़िया. और एक क्वेश्चन था डोमेस्टिक बिजनेस पे. हमने जैसे ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करे हैं, सेल्सफोर्स और कुछ भी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करे हैं हमने. तो इसका कुछ
ये जो हमने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करे जैसे सेल्स फोर्स वगैरह और एक भी कुछ सॉफ्टवेयर। हमें सैप भी, हमारा सैप ही चल रहा है, सैप भी लास्ट फेजेस पे है, अब ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। वी इंट्रोड्यूस ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सैप आल्सो। अच्छा अच्छा, तो इसका ये सब हमने लास्ट 1-2 क्वार्टर में करे, तो इसका कुछ वन ऑफ कॉस्ट आया है क्या ये क्वार्टर में, या ये सेल्स फोर्स तो अभी शुरू हुआ है ना जी, फ्रॉम 1 अप्रैल आएगा। सैप का भी अभी बैलेंस शीट भी, फर्स्ट बैलेंस शीट भी है सैप पे बनाई है। अभी भी टीचिंग प्रॉब्लम बहुत चल रही है उसमें। वो तो एक सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ना, वो सेल तो इंक्रीज नहीं करता ना कुछ। करेक्ट करेक्ट, नहीं मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ सिग्निफिकेंट वन ऑफ कॉस्ट नहीं है ना इसमें जो हमने लास्ट क्वार्टर में लिए हैं, ऐसा कुछ? क्या कॉस्ट क्या? देखिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जो भी वंशिया से ऊपर है वो हमने कैपिटाइज किया हुआ है। वो ऑलरेडी सैप पे तो ज़्यादा लगा है, ये ऑलरेडी एक्सपेंसेस कर चुके हैं सैप पे, 2-3-4 करोड़ लगा नहीं ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी इन द। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। यस मैडम। Thank you. Thank you, madam. Thank you. Ladies and gentlemen, this was the last question for today. On behalf of Systematic Institutional Equities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.